Okay, so good afternoon, everyone. So, as a part of our mentorship program, okay, so in this, we'll be covering current affairs. So, along with current affairs, we will look into how to make notes, okay, how in an organized way. Along with that, we will be also be looking into dealing with the question and answers, okay. So, I'll be providing you question every day on the based on that particular current affairs topic itself, okay. On the basis of that you have to write the answer. So whatever content that I'll be sharing with you, it is going to be in a highly organized manner. Okay. So I'll be providing you with the PDF of this particular topic. So likewise, in this entire mentoring come current affairs session, I'll be covering in an entire year, we will be covering somewhere around 250 to 300 themes, okay, which are good enough for our main examination. Okay. So today's topic is regional disparity in development. Regional disparity in development. We know India is a very diverse country. Okay. It is we can see diversity in terms of culture, we can see diversity in terms of language, we can see diversity in terms of geography. Okay. But along with that, we also see diversity in terms of development, or you can say in terms of economic aspect. Okay. In economic aspect, as well as you can relate it with the social factor aspect. That is the social indicators, human development index and all, education level, health level, okay, jobs, employment. So in all the aspects, we will find there is disparity in India. रीजनल लेवल पे डिस्पैरिटी है इंडिया में. ठीक है. तो ये डिस्पैरिटी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए. तो एज आई सेड कि नोट्स मेकिंग, तो सबसे पहले whenever you are studying regional disparity, always focus on few things. पहला तो क्या है, हमेशा की तरह कि आपके पास होना चाहिए डेटा. ठीक है. डेटा या फिर उसकी जगह पे आप, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ट्रेंड्स. ठीक है. कि रीजनल डिस्पैरिटी का क्या ट्रेंड चल रहा है इंडिया में. ठीक है. सो what is the data that we have with respect to regional disparity? What we know, yes. Okay. So we can see that the western and the southern states are performing better in terms of development as compared to the eastern and northeastern states. This is one such trend. Okay. Then second aspect, we can say that the per capita income, okay, the per capita income of western and southern states is much higher as compared to the eastern and the northeastern states. Okay. Then there is also a social indicator divide as well. Okay. The in terms of health, in terms of education, we know Kerala has 100% literacy rate. Okay. So in terms of social indicators as well, the southern and the western states are performing better. Okay. So these are some trends with respect to the regional disparity in India. Then apart from this, we can find that the regional development in some eastern states, it has declined further. For example, West Bengal. वेस्ट बंगाल में एक टाइम था, इट वाज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट ऑफ इंडिया. बट यहाँ पर अभी क्या देखने को मिलता है? Okay, the development, the social indicators has fallen to a great extent in West Bengal. Okay, it has fallen to a great extent in West Bengal. Similar type of trend can be observed to some extent in Punjab as well. Okay, in Punjab as well. In 1960s, 70s, when Green Revolution was happening in Punjab, at that time agriculture was at its peak, and as a result of which the per capita income of the people of Punjab, it increased to a great extent. Okay, not just Punjab, along with that Haryana and also western parts of UP. Okay, but you can observe that over a period of time, Haryana, the per capita income, the development in Haryana, it is in an increasing trend. हरियाणा में डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, वेयर पंजाब में वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है. अभी ऐसा क्यों है? ऐसा ट्रेंड हमें क्यों देखने को मिल रहा है?
डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी, एक लाइन में बोले तो, ठीक है, डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी। हरियाणा was successful to diversify its economy towards the manufacturing sector and also towards the service sector। ठीक है, गुरुग्राम में हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा आईटी हब वगैरह बना पड़ा है। ठीक है, सो हरियाणा was successful in diversifying its economy, whereas पंजाब it focused only on the primary sector। ठीक है, it focused only on the primary sector, as a result of which we can find regional development increasing in Haryana, whereas in Punjab it is less। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न स्टेट्स तो कंसर्न रहता ही है। ठीक है, उड़ीसा टू सम एक्सटेंट इट हैज इम्प्रूव, बट वेस्ट बंगाल इट हैज डिक्रीज। ठीक है, बिहार इट इज मोर और लेस यू कैन से इट हैज इंक्रीज, थोड़ा तो इंक्रीज हुआ है। ओके, सो पहला तो है ट्रेंड, सो वी नाउ नो द ट्रेंड्स। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स के साथ आप लिख सकते हो, थोड़ा सा डेटा वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, फिर उसके एक दो स्टेट्स के नाम देके आप ट्रेंड्स के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नाउ। What are the factors responsible for regional development disparity in India? क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, सो सबसे फर्स्ट फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया इज द हिस्टोरिकल फैक्टर। सबसे पहले आता है दैट इज हिस्ट्री। So historical factors, when I talk about historical factors, the British policies were more oriented toward the development of the western part of India. The economic policies of the British, they favored certain western parts more. ठीक है, no doubt Kolkata was also there, but it focused on, you can say, the coastal states to a great extent, because at that time trade was mostly happening through sea routes। ठीक है, so historical factors की वजह से you will find that almost almost all almost all the coastal states are doing comparatively much better than some northeastern states, or you can say some hinterland states। ठीक है, झारखंड उसके कंपैरिजन में, झारखंड बिहार इनके कंपैरिजन में उड़ीसा भी अभी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, एंड अदर्स आर परफॉर्मिंग मच मच बेटर। ठीक है, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दे आर डूइंग एक्सेलेंट। ठीक है, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। देन सेकंड फैक्टर इज geographical factors। Second is geographical factors। The northeastern states, like for example, Assam, then you can say northern states like Bihar, they are subjected to flooding almost on a frequent basis। ठीक है, so frequent floodings in these areas affect development to a great extent। Whereas if you talk about the peninsular part of India, here we don't find that significant level of floodings। ठीक है, इतना ज्यादा floodings इन areas में ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो geographical factors also play a key role। Then if you talk about the northeastern state, यहाँ पे सबसे prime reason है for lack of development is the connectivity issue as well। ठीक है, geographical connectivity, entire northeastern part of India, it is connected with the mainland India through a narrow चिकन नेक कॉरिडोर, ऑल्सो कॉल्ड है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, तो हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक छोटा सा रास्ता है, so it becomes very difficult, and because of the increase in instability in Bangladesh now, it is further going to deteriorate the situation। ठीक है, it is further going to deteriorate the situation। That's why we were focusing on developing alternate route to northeastern part of India, that was through Myanmar। ठीक है, anyone is able to recall the name of the port? कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट, एंड द पोर्ट का नाम था सितवे पोर्ट। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ रूट थ्रू बे ऑफ बंगाल से सितवे पोर्ट तक गुड़ जाएंगे, और वहां से वो कलादान रिवर से होते हुए फिर वहां से बाय रोड मणिपुर एंड ये रीजन, मिजोरम रीजन, मणिपुर रीजन में गुड्स एंटर करेंगे। ठीक है, सो वी वर ट्राइंग टू बाईपास एंड स्टिल इट इज इन द डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, बट वहां पर भी इशू है। ठीक है, रोहिंग्या इशू है। ठीक है, रखाइन में एरिया में, तो जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हुआ, इट इज अंडर डेवलप्ड। ठीक है, इट इज अंडर डेवलप्ड।
देन थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक। ठीक है, थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, यही लिख देता हूँ। Third factor for regional disparity in development is the economic factor. You will find that most of the northeastern states, eastern states, and some even northern states, they are still engaged in primary activities. They are still engaged in primary activities. Still, they are dependent on agriculture, fisheries. ठीक है, fisheries को वो develop कर सकते हैं, but वो भी बहुत old age technologies ही use की जाती है. As a result of which, they do not have higher income. Then the states themselves, they haven't diversified their policies for further investment, industry development पे ज्यादा focus नहीं किया है. So economic factor is the third factor which is responsible for regional disparity in India. ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ फैक्टर क्या है, क्या हो सकता है, कोई एनी आइडिया? एग्जैक्टली, फोर्थ फैक्टर इज द गवर्नेंस. ठीक है, फोर्थ फैक्टर इज द गवर्नेंस. You will find that the governments in western parts of India, the southern parts of India, they are more stable. ठीक है, वहां पे इतना ज्यादा chaos नहीं होता. Whereas if you talk about northern states, then eastern states, they are more of in chaotic state. ठीक है, वहां पे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, गवर्नेंस मशीनरी ठीक से नहीं है. अगर हम बिहार की बात करें, देयर वर मल्टीपल गवर्नमेंट चेंजेस in you can see in last few years itself. ठीक है, द गवर्नमेंट इज इन दैट स्टेबल. ठीक है, नीतीश जी कभी यहाँ कभी वहां. ठीक है, so because of this the entire governance structure gets affected, and as a result of which the policy implementation also gets affected. ठीक है, and ultimately that hampers the development. मणिपुर में अभी जो हो रहा है, it is completely a lack of governance. ठीक है, तो गवर्नेंस इश्यूज की वजह से भी रीजनल डिस्पैरिटी में दिक्कत, सॉरी, रीजनल डिस्पैरिटी जनरेट हो जाती है, एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू इनइक्वालिटीज इन इंडिया. ठीक है, सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैरिटी. ठीक है, अभी फैक्टर्स देख लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट चीज आती है कि भाई ये रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से होने वाले इम्प्लीकेशंस. ठीक है, तो नोट्स भी जब बनाओगे, आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स. ठीक है, बट आपने साइड से भी अगर कुछ बना रहे हो तो एक ही पैटर्न हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है, सो इम्प्लीकेशंस क्या क्या है इसके. रीजनल डिस्पैरिटी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. Increased migration. Okay, so some northern states like UP and Bihar, they are means mostly out migration takes place from those regions, and states like Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, they are where they are on the receiving end of the migrating population. So as a result of which that becomes an issue. ठीक है, because you have to cater to that migrating population as well. You have to cater to their basic needs, health needs, education needs, their food security needs, everything. So that becomes a concern. तो migration एक implication है इसकी वजह से. और exactly, security threats, security threats. This if अगर development ही नहीं है, ठीक है, पैसा ही नहीं है जेब में, तो that will lead to rise in left wing extremism, जिसको हम नक्सल, न्यूज टर्म जो है नक्सलिज्म. तो एग्जाम में नक्सलिज्म कभी मत लिखना. ठीक है, हमेशा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लिखना है. ठीक है, न्यूज के वर्ड्स नहीं यूज करने हैं. ठीक है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, एंड मींस आई हैव हर्ड दिस, आई डोंट नो हाउ मच इट इज रियल. वहां पे इन रेड कॉरिडोर एरिया, दैट इज द एंड ऑल द स्टेट्स विच आर अफेक्टेड बाय, ऑल द रीजन्स विच आर अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसको रेड कॉरिडोर एक एरिया बनाया गया हुआ है. झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, बिहार का एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है. तो ये पूरा जो एरिया, रेड कॉरिडोर जो एरिया बना पड़ा है, यहाँ पे लिटरली रिक्रूटमेंट होता है. ठीक है, दे पे दे पे पीपल टू ज्वाइन दिस एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज. ठीक है, प्रॉपर फॉर्म वगैरह निकलता है. ठीक है, एग्जाम वगैरह कंडक्ट होता है, और देन दे कैन ज्वाइन इन दिस काइंड ऑफ सर्विस. ठीक है, फॉर देम. ठीक है,
So it is all because of lack of development. That's why you will often hear that government is trying to build roads, construct road, bridges in these areas, trying to develop some social infrastructure in these areas. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक थ्रेट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, वही इसी चीज से रिलेट करता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट इज पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इन महाराष्ट्र वी हैव डिमांड फॉर सेपरेट विदर्भ। ठीक है, इन महाराष्ट्र वी हैव डिमांड फॉर सेपरेट विदर्भ। इनफैक्ट the formation of Andhra Pradesh, or you can say the bifurcation of Andhra Pradesh and Telangana, formation of Telangana, it was basically based on this reason only. There was regional disparity. Okay, the entire Andhra Pradesh state, it was receiving major funds, or it was able to collect major taxes from one area, that is Hyderabad region. ठीक है, तो हैदराबाद रीजन से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए यूटिलाइज किया जाता था। सो द तेलंगाना, द पीपल हु वर रिसाइडिंग इन द तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स, दे वर लाइक कि यार हमारा पैसा बाकी एरियाज में जा रहा है। इन आंध्र प्रदेश देयर इज अ रीजन, रायलसीमा रीजन। ठीक है, रायलसीमा रीजन, इट्स अ हाईली ड्रॉट प्रोन रीजन एंड देयर इज, यू वोंट सी दैट मच काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन अ काइंड ऑफ सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो which ultimately led to the bifurcation of Andhra Pradesh in 2014 and formation of the Telangana state. So regional disparity development की वजह से ये सारी चीजें होती है, that is political fragmentation, borderland। ठीक है, then demand for separate Harit Pradesh in Uttar Pradesh, these are all because of this thing। ठीक है, फिर उसके बाद not only these are the impacts, इसके बाद और एक impact है, that is the environmental impact। Environmental impact, now how environment is also affected because of regional disparity. As I said a while ago that lot of people they migrate in search of better opportunities। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उड़ीसा, दे कम टू द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली रहने के लिए फिर जगह वगैरह नहीं रहेगी, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। ठीक है, स्लम्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, सो ये अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है। इनफैक्ट पुण्याच्या इर्दगिर्दचे सगळे डोंगर पहा तुम्ही। ठीक है, they have been almost illegally occupied by slums। Okay, that's why what government did is that it started giving the entire hill areas to the private people। ठीक आहे, आता प्रायव्हेट डेव्हलपमेंट साठी देऊन टाकले त्यांनी। फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पाहिलं असेल, इफ यू विजिट भूगाव, there you will find a huge scheme, residential scheme has developed। ठीक आहे, so that की तिथं पण लोकांनी स्लम एरिया नाही बनवावं म्हणून। ठीक आहे, so likewise it affects the environment as well। ठीक है, so regional disparity it does affect the environment as well। Now obviously this is a big issue, it's a challenge for the nation। तो इसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो आती है, you can say initiatives। ठीक है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? पीएम डिवाइन स्कीम। ओके, पीएम डिवाइन स्कीम, और इट्स जीएस पेपर 2 कंसेप्ट, आई वुड रादर से जीएस पेपर 2 में अगर लिखो तो सही हो जाएगा। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज देयर। ठीक है, one district one product is there। okay, then regional development programs are there, drought prone area development program, hill area development program, border area development program। So these are targeted regional area development programs and these are specifically designed to ensure that we are reducing the regional disparity। ठीक है, we are reducing the regional disparity। ठीक है, फिर अल्टीमेटली लास्ट में आ जाता है, फिफ्थ आ जाता है, दैट इज वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड लास्ट में जो चैलेंजेस थे, जो इम्प्लीकेशंस थे, उसको ही थोड़ा सा ऑपोजिट कर लो। गवर्नेंस इशू है तो इम्प्रूव गवर्नेंस। ठीक है, एंश्योर डेवलपमेंट इन द
you can say in the remote areas, ठीक है, from where the out migration is basically taking place. Okay, then अजून काय? हाँ, I would rather say optimize land utilization, optimization of land utilization. ठीक है, exact, exactly, exactly. ठीक है, so you can use modern day technology as well to study the migration pattern and accordingly provide services in the local areas. ठीक है, so local development is also one important aspect through which we can target this particular issue. ठीक है, providing employment to people at their places. ठीक है, at the places at, or you can say from the source region where out migration takes place. ठीक है, improving dry ports and connectivity. Then one important thing is that, as we know, eastern states and some northern states, as I've said a while ago, they are mostly focused on primary activities. Okay, they are mostly focused on primary activities. So development of agricultural processing industries, it is a very crucial, and it is for northeastern states के लिए भी और eastern states के लिए भी. ठीक है, so development of, you can say, food processing or agricultural processing industries, it should be done in priority. ठीक है, mechanization of agriculture, or rather I would say bringing green revolution to eastern part of India. ठीक है, बिकॉज मैकेनाइजेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न में वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल टेरेन ओवर देयर मैकेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. बड़े बड़े हार्वेस्टर्स वहां कहाँ ये करोगे, यूटिलाइज करोगे आप. ठीक है, so that will becomes a bit difficult, or rather you can say कि डेवलपमेंट ऑफ परंपरागत कृषि योजना जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, बिकॉज दैट विल एड वैल्यू टू देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. अभी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसमें उनको वैल्यू नहीं मिल रहा होगा, बस ऑर्गेनिक आप आगे नाम लगा देते तो उसके दाम बढ़ जाते हैं. रियल में वो ऑर्गेनिक है या नहीं पता नहीं. पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम वहां पे अच्छे से इंप्लीमेंट करो. ठीक है, पीयर रिव्यू करके जो बोलते हैं कि हाँ भाई उसकी खेती में ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मेरी खेती में भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, सो एक स्टैंप लग जाता है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का. फॉर एग्जांपल सिक्किम, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो. ठीक है, सिक्किम इज द ओनली एंटायर ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया एंड इट इज डूइंग वेल. ठीक है, so, इम्प्रूविंग सर्व शिक्षा अभियान, देन स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, सब चीजें लिख सकते हो आप. ठीक है, कौशल विकास योजना, सारी चीजें लिख सकते हो. ठीक, हाँ, सब सही हो, सब सही हो, कोई गलत नहीं. ठीक है, फिर इसके बाद इसमें ही है ना, एक्चुअली एक रीजनल डेवलपमेंट में ना एक कंसेप्ट है, एक टर्म आता है. दैट टर्म इज, डज एनीवन नो दिस टर्म? डच डिजीज, प्रीलिम्स के लिए याद रखना. डच डिजीज, ये डच डिजीज बेसिकली क्या है? डच रीजन पता है कहाँ है? डच एरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप. ठीक है, नेदरलैंड उनका जो बेल्ट है तो वहां पे डच एरिया. सो व्हाट हैपेंड इज दैट फ्यू इयर्स अगो, एज वी ऑल नो, अरब स्टेट्स में बहुत सारा ऑयल रिजर्व्स है. अरब स्टेट्स में बहुत सारा ऑयल रिजर्व्स है, एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज सारे दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज एरियाज फॉर द ऑयल सप्लाई. ठीक है, बट एक टाइम क्या हुआ, अचानक से डच एरिया में है ना बहुत सारा, नॉर्थ सी के यहाँ पे बहुत सारा ऑयल रिसोर्सेस मिल गए. ठीक है, बहुत सारा ऑयल रिसोर्सेस मिल गए. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ ना, the oil prices, Europe was dependent on Arab areas for the supply of oil.
ठीक है, तो जैसे ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ते थे, एज द रिजल्ट ऑफ विच द प्राइसेस ऑफ ऑल अदर गुड्स यूज्ड टू इंक्रीज इन द यूरोपियन एरिया। ठीक है, ऑल अदर प्राइसेस यूज्ड टू इंक्रीज इन यूरोपियन एरिया। बट अचानक से यहाँ पे डच एरिया में ऑयल रिजर्व मिल गया और वहां पे फिर ऑयल प्रोडक्शन बहुत लेवल पे स्टार्ट हो गया। सो एज द रिजल्ट ऑफ विच सारी चीजों के प्राइसेस फिर दे स्टार्टेड फॉलिंग। ठीक है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, तो उसके फिर जो डिमांड थी इट वाज दैट हाई that led to fall in the prices, बेसिक इकोनॉमी के कंसेप्ट से। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरा का पूरा जो एरिया का जो डेवलपमेंट था वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया। एंड सेम टाइप ऑफ फिनोमिना यू कैन ऑब्जर्व इन इंडिया एज वेल। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, देन सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, these are highly rich in mineral resources. These are highly rich in mineral resources. But are they as much developed as compared to the other states? Absolutely not. So this thing, so this thing is called as the Dutch disease. ठीक है, सो मिनरल सेक्टर तो वहां पे बहुत ज्यादा है, मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा है, सो दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री तो अच्छा खासा डेवलप हो गया। बट फिर बाकी के इंडस्ट्रीज उसकी वजह से हैम्पर आउट हो गया। ठीक है, सो वन सेक्टर rises to a great extent, but other they suffer. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनल डिस्पैरिटी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेना। What are the major causes? What are the major causes of regional disparities? What are the major causes of regional disparities in India? Analyze their impact. Analyze their impact on national integration and development. Analyze their impact on national integration and development. Also, okay. So the first and foremost thing that you should be doing is break the question. Break the question. ठीक है, सो इसको अभी लिखोगे कैसे? बस स्ट्रक्चर बता दे, बस स्ट्रक्चर बता। एक साथ मत लिखो, मुझे स्टेप स्टेप में ब्रेक करके बता दे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में थोड़े से ट्रेंड्स बता देना, डेटा यू हैव। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज द मेजर कॉजेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है, तो सिर्फ एक सब हेडिंग देनी है कॉजेस, उसको बॉक्स कर देना है। 1 2 3 4 जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वही कॉजेस में ऐड कर देने हैं आपको। ठीक है, देन एनालाइज देयर, नेक्स्ट इज दी एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो बस एक हेडिंग सब हेडिंग दे देना, इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वो लिखोगे। फिर उसके बाद क्या है, क्या आंसर यही कंक्लूड करके छोड़ दोगे? ठीक है, तो वे फॉरवर्ड दे देना। ओके, वे फॉरवर्ड लिख देना, देन कंक्लूड द आंसर। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि हाँ यार इसमें क्या ही वे फॉरवर्ड दे। ऑलवेज रिमेंबर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, वी आर द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, सो वी शुड ऑलवेज गिव सम सजेशंस। ठीक है, wherever possible always try to give some suggestions, suggestions in the sense of way forward। ठीक है, suggestion in the terms of way forward, तो way forward लिख देना and then you can conclude। ठीक है, कैसे कंक्लूड करोगे? रीजनल डिस्पैरिटी एक वर्ड है, और डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब रीजनल डिस्पैरिटी, इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट, ये तीन कीवर्ड्स है इसमें। इन तीन कीवर्ड्स को यूज करके
ठीक है, कंक्लूजन लिखना है आपको। Thus overcoming regional disparity we can achieve एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। देन और 2047 विजन, क्या नाम दिया है उसको? हाँ, to achieve the dream of a developed nation by 2047। ठीक है, वो तो वो अमृत काल तो 75 ईयर्स बस सेलिब्रेट करें। ठीक है, सो ऐसे लाइकवाइज यू कैन कंक्लूड योर आंसर। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक रखना, ओपन एंडेड रखना। तो अभी कितना टाइम हुआ है? 1:32 हुआ है। ठीक है, तो 13 मिनट का टाइम है आपके पास। मैं नोट शेयर कर रहा हूँ, उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक, एक और टॉपिक मुझे कवर अप करना था, दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स। बट टाइम कितनी है विशाल सर? टाइम बाकी है 8 मिनट। ठीक, I won't be able to finish critical mineral, but I will just show you one answer that was written in the morning by one of my student। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स टॉपिक कवर कर, बट एनीवेज वो पॉसिबल नहीं है। बट आई जस्ट शो यू हाउ द पर्सन हैज रिटन इट। दैट विल गिव यू क्लियर आइडिया कि भाई मेरे स्टूडेंट कैसे आंसर। So I want you people to also improve it to such level। जैसे कि critical mineral से ये क्वेश्चन था, what are critical minerals and why are they essential in a country's economic and strategic interest? Discuss India's effort to secure its supply of critical minerals and suggest measures to reduce dependence on imports। ठीक है, सो क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिखा विद एग्जांपल। ठीक है, विद एग्जांपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट है व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हो गया। व्हाई आर दे एसेंशियल फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट? तो सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक दोनों एड्रेस किए अच्छे से, दोनों एड्रेस किए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन में ही, डिस्कस इंडियाज एफर्ट्स टू सिक्योर इट्स सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, इंडियाज एफर्ट्स, तो इसके एफर्ट्स जो है, एफर्ट्स इसलिए लगाने पड़ रहे बिकॉज देर आर सर्टन चैलेंजेस, बिकॉज देर आर सर्टन चैलेंजेस। अभी चैलेंजेस तो वहां पे कभी पूछा नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई ऐसे कि हिडन एस्पेक्ट जो है वो पता होना चाहिए। सो चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट, फिर उसके बाद इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स है। ठीक है, व्हाट इनिशिएटिव्स इंडिया हैज अंडरटेकन with respect to acquisition of critical minerals। ठीक है, and then some measures to reduce import dependence। ये क्वेश्चन में पूछा गया है what measures to reduce import dependence, so what measures can be taken। और ये इस चीज को मैंने मतलब बता दिया है कि if you are putting up any map, ensure that it doesn't occupy too much of space। ठीक है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, उसको बॉक्स में होना चाहिए हमेशा मैप को। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ये उसको हेडिंग या सब हेडिंग मैप को हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, मैप को सब हेडिंग हमेशा होनी चाहिए। इनफैक्ट योर स्ट्रक्चरिंग एंड आंसर राइटिंग इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ठीक है, तो ये होना चाहिए प्रॉपर, उसको बॉक्स होना चाहिए, एंड देन एक कंक्लूजन। ठीक है, सो दिस वे यूजुअली, एंड शी इज ऑल्सो फर्स्ट अटेम्प्टर ओनली। ठीक है, सो उसका भी आंसर राइटिंग बहुत सही है, बट इट टुक सम टाइम। ठीक है, लिटरली 5-1 महीने लगे हो गए देन वो स्किल डेवलप हुआ टू एड्रेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं। ठीक है, उतने टाइम में ही आप लोगों को बहुत सी इंफॉर्मेशन कवर अप करनी होगी। ठीक है, तो एनीवेज बट स्टिल आई होप कि कैसे भी नोट जो बनते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही होने चाहिए। दे शुड बी ऑलवेज इन सच ऑर्गेनाइज्ड वे, because you will be easily able to tackle any mains question if you have the data in an organized manner।
ठीक है. So I'll be sharing today's notes with you people. Just go through it and then go on to write the answer. Initially it might take some time. थोडा वेळ लागू शकतो तुम्हाला आन्सर लिहायला, काय हरकत नाही. ठीक आहे. जर तुमच्या समोर डेटा आहे तर मला तर वाटतं टॉपिक आपण एक्सप्लेन केलंय, डिस्कस केलंय, तुमच्याकडनं कितीतरी पॉईंट्स आले इनफॅक्ट. ठीक आहे. सो म्हणण्याचं हेच आहे की बाबा तुम्हाला सर्व गोष्ट माहिती आहे, फक्त ते एका ऑर्गनाइज्ड वे मध्ये नाही. ठीक आहे. तर तुम्ही फक्त त्याला ऑर्गनाइज्ड वे मध्ये ज्यावेळेस पण थॉट प्रोसेस करा, तर इफ यू आर डुईंग युअर थॉट प्रोसेस इन अन ऑर्गनाइज्ड वे, यू विल बी व्हेरी इझिली एबल टू राईट एनी काइंड ऑफ आन्सर. ठीक आहे. सो आय एम शेअरिंग दिस फाईल विथ यू ऑल. क्रिटिकल मिनरल्सचा टॉपिक त्याच्यात आहे, बट तो आपण उद्या कव्हर करूया. आता ऍटलिस्ट आपण एक एक टॉपिक करत आहोत. ठीक आहे. सो एव्हरी डे एक एक टॉपिक जरी केला तरी 2-3 महिन्यात आपले 100 एक टॉपिक तरी आरामात होऊन जातील. ओके. आणि बाकीचे मेन असतील मग प्रिलिम्स आणि मेन्सच्या मध्ये आपण खूप जास्ती त्यावेळेस तर जास्त वेळ चालेल, 3-3 तास जर चालला आपण त्यावेळेस जास्ती टॉपिक तुमचे कव्हर अप होऊन जातील. ओके. So just write the answer to this question.